Okay, so today we are going to start with this topic of bank reconciliation statement. Now, this is a very important chapter, not just from exam point of view, but even from learning point of view, because it's a very practical chapter. Every business every business who is having a bank account, and I'm sure every business is having a bank account, has to prepare a bank reconciliation statement. Even people like you and me who have a bank account and is doing lots of transactions should ideally prepare a bank reconciliation statement, but generally we don't because we don't have so much transactions. So let's start this session and understand what exactly is bank reconciliation statement. Now, let's start with this concept. Now we have a business, and you know the first transaction what we learned for journal entry full-fledged sums was that owner started business by bringing cash. So that was the first thing. So cash came in the business, but you all know that keeping cash in business becomes risky because it can be stolen. Okay, there can be frauds. So it is always better that cash is deposited by opening a bank account in the bank. So second transaction, what we generally used to see was that opened a bank account by depositing cash. So here we have business and here we have bank. So there are two separate entity. एक है business और एक है bank. So what does business do? Business goes to the bank, gives the money and opens an account. So business is opening an account. Okay. Now we have to see everything from the point of view of business because we are writing books of accounts in the books of business. Now, business keeps on transacting with the bank. Business keeps on transacting with the bank. बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, किसी को चेक इश्यू किया. तो from bank, our money either keeps on coming in the bank account, or we give this money, keep on giving this money to other people, we withdraw ourselves. So constant transactions take place between two separate institutes, business and bank. Now, I hope you are all able to understand this. सबको समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. हमारा बैंक अकाउंट है तो हम उसके साथ ट्रांजैक्शन करते ही रहते हैं. ओके, कभी पैसा डिपॉजिट किया, कभी चेक डिपॉजिट किया, कभी हमने किसी को चेक उसमें से वो बैंक अकाउंट से चेक इश्यू किया, और कभी पैसा उठा विड्रॉ किया उस बैंक अकाउंट में से. तो वी कीप ऑन ट्रांजैक्टिंग. तो सिमिलरली बिजनेस कीप्स ऑन ट्रांजैक्टिंग विद द बैंक. नाउ जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं we have to record it in our books of accounts. So what does business do? Business prepares a cash book which has a bank column. Are you all able to recall the cash book chapter? The cash book chapter, we used to prepare a cash book, 3 columnar जहाँ पे cash, bank और discount था. याद आया सबको? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now, please pay attention. Okay, if you understand the concepts properly, it's a very easy chapter. You can score full marks. But it's a conceptual chapter. यहाँ पे गोखम पट्टी चलेगा नहीं. Okay, so you just can't mug up कि checks deposited but not collected को credit ही करने का. But वो क्यों करने का? उसके लिए you have to have your concepts clear. So now
व्हाट डज बिजनेस डू, यानी हम लोग क्या करते हैं, हमारा बैंक में अकाउंट है तो बैंक के साथ जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं. कैश बुक में देयर आर टू साइड, one is debit and other is credit. Debit side is receipt and credit side is payment. So any money coming to our bank account we record over here, and any money going from our bank account we record over here. So whenever any amount is deposited in the bank, our bank balance will increase. Whenever we give check to someone, our bank balance will decrease. समझ में आया ये? फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि हमने अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो हमारे बुक्स में, इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज. अगर हम उस बैंक अकाउंट से कोई पेमेंट करते हैं तो बैंक बैलेंस विल डिक्रीज. So cash book में we will record on the payment side if payments are made, and if deposits are made, we record it on the receipt side. So this is what we do as business over here by preparing a cash book, which you all have already done. Now, what all transactions are happening? तो बिजनेस तो अपना हिसाब रखता है बाय मेकिंग अ कैश बुक कि बैंक में कितना पैसा गया, बैंक से कितना पैसा निकला, बैंक का बैलेंस कितना है. बट bank also has a responsibility towards us because bank is a custodian of our money. यानी बैंक हमारा जो पैसा है उसका जिम्मेदार पर्सन है, कस्टोडियन है, उसकी कस्टडी में है, तो उसका भी जिम्मेदारी है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक also to record all the transactions regarding our business account. So what does bank do? बैंक भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है. सो बैंक जो है वो उसके बुक्स में बिजनेस अकाउंट ओपन करेगा. नाउ कंफ्यूज मत हो जाना. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. मानो, ध्यान दो. नाउ फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे घर के पास एक प्रोविजन स्टोर है. ओके, रेगुलरली तुम वहां से खरीद रहे हो सामान पर पैसा नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट ने एक बुक रखा है कि जो जो सामान खरीदा वो लिखा. एट द सेम टाइम वो शॉपकीपर ने भी एक बुक रखा है जिसमें तुम्हारा अकाउंट है, जहां पे वो भी रिकॉर्ड करेगा कि कितने रुपए का सामान दिया, कितना पैसा आया, कितना बाकी है. तो सिमिलरली बैंक भी अपने बुक्स में हमारा बिजनेस अकाउंट खोलेगा और उसमें वो रिकॉर्ड करेगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शन इस बिजनेस के हुए. फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का नाम है यूविल, तो यूविल के कितने पैसे आए, यूविल के कितने पैसे गए और यूविल का कितना बैलेंस है. सो व्हेनेवर यू गो टू अ बैंक, से तुम सबका भी अकाउंट होगा बैंक में, अगर नहीं है तो प्लीज खुला लो. इट इज रियली इंपॉर्टेंट यू हैव अ बैंक अकाउंट. ओके, उससे एक फायदा होगा कि यू विल अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट. उसका एक दूसरा फायदा भी है कि तुम्हें उस बहाने थोड़े पैसे तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पेरेंट से भी मिल जाएंगे. तो दो लाभ होगा तुम्हें, बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे. तो प्लीज ओपन अ बैंक अकाउंट if you don't have a bank account. Now ध्यान दो, तो अगर तुम बैंक में जाते हो तो तुम बैंक में जाके बोलोगे कि भाई मुझे मेरा बैंक बैलेंस जानना है. तो बैंक में जो पर्सन बैठा है वो तुम्हें पूछेगा आपका अकाउंट नंबर क्या है. तो यू विल से मेरा अकाउंट नंबर है 38765432. तो वो जाएगा कंप्यूटर में देखेगा और तुम्हें बताएगा कि ये तुम्हारा बैंक का बैलेंस है. तो बैंक भी अपना हिसाब रखेगा by opening a business account. All of you understood this? So जैसे प्रोविजन स्टोर वाला उसके बुक्स में हमारा अकाउंट खोलेगा, हम हमारे बुक्स में प्रोविजन स्टोर वाले का अकाउंट खोलेंगे. तो बिजनेस विल ओपन द अकाउंट ऑफ द बैंक इन द फॉर्म ऑफ cash book, and bank will record our transaction in ledger account of business.
नाउ बैंक जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है उसका मुझे रेगुलरली स्टेटमेंट भेजता है, या फिर मेरे पास एक पासबुक होता है. हैव यू ऑल सीन अ पासबुक? हैव यू ऑल सीन अ पासबुक? Yes, sir. Yes. पासबुक, पासबुक क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज अ पासबुक? ओके, पासबुक जो है, पासबुक पासबुक जो है, इट इज बेसिकली बैंक ने जो हमारा अकाउंट मेंटेन किया है उसका एक कॉपी हमें देता है इन द फॉर्म ऑफ पासबुक. सो पासबुक is basically our ledger account, copy of our ledger account, यानी copy of business ledger account in the books of बैंक. यानी प्रोविजन स्टोर वाले के पास उसका डायरी है, पर तुमने कहा तुमने क्या क्या लिखा है, मुझे उसका कॉपी दो. वैसे बैंक ने जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उसका जो कॉपी तुम्हें मिलता है उसको हम कहते हैं पासबुक. नाउ दीज डेज मेनी प्राइवेट बैंक्स डोंट गिव पासबुक, यू गेट बैंक स्टेटमेंट. बट व्हाट आर बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट्स are again transactions recorded by bank in the books, in the ledger account of business. Is this clear? What is a passbook? पता चला कि बैंक ने तुम्हारा क्या हिसाब रखा है वो तुम्हें पासबुक से पता चलेगा. नाउ ध्यान दो, मेरे लिए मैंने जब पैसा बैंक में रखा तो आई हैव अ राइट टू रिसीव दैट मनी, तो मेरे लिए असेट है. तो बैंक के लिए वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा. तो बैंक में जो बिजनेस अकाउंट है उसमें भी देयर विल बी टू साइड, वन विल बी डेबिट एंड अदर विल बी क्रेडिट. नाउ बैंक में जब हमारा बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक करेगा क्रेडिट, और बैंक में जब हमारा बैलेंस डिक्रीज होगा तो बैंक उसको करेगा डेबिट. यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट. मेरे लिए जो असेट है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, और मेरे लिए जो पेमेंट्स है ओके वो बैंक के लिए रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी है. यानी इतना अब कम पैसा हमें बैंक अकाउंट होल्डर को देना पड़ेगा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? फिर से एक बार, ये जो मेरे लिए डेबिट है वो बैंक के लिए हो जाता है क्रेडिट, और जो मेरे लिए क्रेडिट है वो बैंक के लिए हो जाता है डेबिट. गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, now let's understand. Just a minute. Okay, now ये हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो ट्रांजैक्शन बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, ट्रांजैक्शन बैंक भी रिकॉर्ड करेगा. ये सबको पता चल गया कि हम भी हिसाब रखेंगे और जिसको हम पैसा दे रहे हैं, जहां से पैसा आ रहा है जा रहा है, उसका हिसाब बैंक भी रखेगा. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें किसी को कोई डाउट है? नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ व्हाट हैपेंस? पे अटेंशन. नाउ जब महीने का अंत होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी महीना खत्म हो गया, सो एट द एंड ऑफ द मंथ हमने क्या किया? हमने हमारा जो कैश बुक है, ये जो कैश बुक है उसको बैलेंस किया और हमने फाइंड किया बैलेंस एज पर कैश बुक. सो हमारे पास आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, जो तुमने कैश बुक के चैप्टर में किया था, बैलेंसिंग किया था कि क्लोजिंग बैलेंस इतना आया. वैसे ही बैंक भी बैलेंस करेगा तो उसका आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. बैलेंस एज पर कैश बुक मीन कि मेरा बैंक में इतना रुपीस है, एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज यानी बैंक भी कंफर्म करता है कि यस तुम्हारा इतना पैसा हमारे पास है. तो अगर मेरे कैश बुक में बैलेंस आया
₹50,000, तो बैंक के पासबुक में भी मेरा 50,000 बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने हिसाब रखा तो मेरा 50,000 बैंक में है, तो बैंक भी वो कंफर्म करना चाहिए कि हाँ तुम्हारा 50,000 है. अग्री और नॉट? यू अग्री और Yes, sir. नॉट? Yes, sir. ध्यान दो. Yes, But sir. problem कब हो जाता है? The problem happens when your balance as per cash book does not match with balance as per passbook. Then there is a problem. यानी if I am saying कि मेरा 50,000 बैंक में, but बैंक पासबुक में जब मैंने अपडेट किया तो पता चला कि नहीं नहीं मेरा तो सिर्फ 30,000 बैलेंस है, then there is a problem. तो it's just like कि तुमने वो प्रोविजन स्टोर वाले के पास तुम गए और तुमने बोला कि तुम्हारे 2,000 रुपए बाकी है, ये ले लो, बट ही विल से नहीं नहीं मेरे 2,000 नहीं, मेरे तो 3,000 बाकी है. तो कैन आई से नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम कि दोनों के बैलेंस मैच हो नहीं रहे. समझ में आया सबको? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? So this, whenever your balance as per cash book is not matching with balance as per passbook, we have to initiate कि अब ये differences क्यों है, ये क्यों मैच नहीं हो रहा है. अच्छा मान लो कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बैंक में 50,000 होना चाहिए, 50,000, बट बैंक ऐसा कहता है कि तुम्हारे 1,00,000 रुपए है बैंक में, तो यू विल बी वेरी हैप्पी or you will still try to find the reason for difference? कि ज्यादा पैसे है तो होने दो ना, चलो फायदा हो गया, या फिर you will still try to find the difference? Difference find करेंगे sir. Try to Exactly, find. because it means कहीं पे कुछ गलती हुआ है. तो सी यहाँ पे balance as per cash book, if it does not match with balance as per passbook, what we have to do? We have to find out the reason for differences between balance as per cash book and balance as per passbook. What we have to find? I'll write over here. We have to find the reasons for differences between balance as per cash book and passbook. So हमें क्या करना पड़ेगा? How do we practically do it? I will take cash book, I will take passbook, and I'll compare. I will see the debit side of cash book with credit side of passbook. I'll see credit side of cash book with debit side of passbook, and I will see कि कहाँ पे difference है, कहीं कोई mismatch तो नहीं है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, कहीं कुछ रॉन्ग तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो हम ये कंपैरिजन करते हैं कैश बुक का और पासबुक का टू फाइंड आउट कि किस वजह से our balance did not match. So reasons for differences between balance as per cash book and passbook need to be found and are supposed to be recorded कि भाई किस वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हुआ नहीं. तो उस रीजंस को रिकॉर्ड करने के लिए वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो एज द नेम सजेस्ट बैंक reconciliation statement. So bank reconciliation statement is a statement to record what? To record reasons for differences between what? Between balance as per cash book, between balance as per cash book and passbook. So BRS, bank reconciliation statement, is a statement to record reason for difference between balance as per cash book and balance as per passbook. Reconcile करना यानी क्या? Now
कुतनों को तो अभी वही नहीं पता चला भाई सर रिकंसाइल यानी क्या, रिकंसाइल करना यानी मैच करना। फॉर एग्जाम्पल, ओके फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि तुम्हारा 10,000 फीस बाकी है एंड यू विल से नहीं नहीं सर मेरा तो सिर्फ 8,000 बाकी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि तुमने कब कब फीस भरा उसका रिकॉर्ड दिखाओ, रिसीप्ट दिखाओ, मैं भी अपने रिकॉर्ड्स देखूंगा, हम कंपेयर करेंगे एंड फाइंड करेंगे कि किस वजह से हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। सिमिलरली बिजनेस में we prepare a bank reconciliation statement to record the reason for difference, रीजन फॉर डिफरेंस, कि ये जो डिफरेंस आया उसकी क्या वजह है, किस में डिफरेंस आया, बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमने बनाया और बैलेंस एज पर पासबुक जो बैंक ने बनाया। सो मैंने जो हिसाब रखा और प्रोविजन स्टोर वाले ने जो हिसाब रखा हमने उसको कंपेयर किया और जो 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 मिसमैच हुआ उसको हमने रिकॉर्ड किया। इसको कहते हैं रिकंसाइल करना यानी मैच करना। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो ये जो मैंने लिखा है व्हाइट स्क्रीन पे थोड़ा स्क्रिबल कर लो और बीआरएस क्या है ये भी एक बार लिख लो एंड देन वी विल प्रोसीड विद द फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask. Now see, let me tell you something very important. See, कोई भी बिजनेस करता है ओके तो उसको तीन चीजों पे बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। अगर उसका तीन चीजों पे कंट्रोल नहीं है तो उसका बिजनेस ज्यादा समय तक चलेगा नहीं, बहुत बड़े फ्रॉड्स हो सकते हैं और वो बिजनेस नुकसान में जा सकता है। तो वो तीन चीजें हैं, पहला कैश, तो कैश पे प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए। सेकेंड है तुम्हारा बैंक, because bank is also connected with cash, it is cash which you have kept in the bank, the second is bank। तो बैंक पे पूरा कंट्रोल चाहिए। तो बैंक पे हम कैसे कंट्रोल करते हैं, by preparing a cash book and then at the end of every month or week or daily we compare it with the bank balance as per passbook and we see if they are matching or not। तो पहला है कैश, दूसरा है बैंक और तीसरा है स्टॉक, कि तुम्हारे दुकान पे, तुम्हारी फैक्ट्री पे, तुम्हारे रेस्टोरेंट पे, तुम्हारे प्रोविजन स्टोर पे जो स्टॉक ऑफ गुड्स है उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल चाहिए। ये तीनों पे कंट्रोल है तो बिजनेस अच्छा चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई फ्रॉड्स के चांसेस मिनिमल हो जाते। पर अगर ये तीनों पे कंट्रोल नहीं है तो कैसा भी बिजनेस हो वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं। So this is just for your knowledge. In future, if you do a business, you should have proper control over cash, over bank, and stock of goods. If you ask me, we run a coaching class, so we don't have stock of goods, but yes, we have stock of material. We have stock of stationery. So we have a control over it. We have fees coming in the form of cash, in the form of check, in the form of online transfer. So we have a very strong system of recording and at the end of the month reconciling it, so that पता चले कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया है, कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। So these are very important concepts, okay? So ये चैप्टर पे थोड़ा ध्यान देना, because BRS is a tool what we use to control our bank, okay? लिख लो, then we proceed. Okay, so I'm making two format. One is this cash book. It has debit and credit. Cash book will be made by the business. So I'll draw a line. And then I have a passbook. So what is a passbook? Passbook is copy of my ledger account or business ledger account in the books of bank. And a passbook is prepared by bank. So bank के books में bank ये जो हिसाब रख रहा है उसका copy है। Here also there is debit and here also there is credit. Now at the end of the month, balance as per cash book should be equal to balance as per passbook. If it is not equal, then we have to find the reason for differences. Now,
we are preparing a bank reconciliation statement. So we are comparing balance as per cash book with balance as per passbook. You also try to scribble all these things, okay, so that you don't forget per passbook. So what we do is when we prepare a statement, we will be starting our statement with either balance as per cash book or balance as per passbook. Now let's come over here and understand the format of bank reconciliation statement. Now bank reconciliation statement, okay, has a format which is very simple. You have serial number, you have particulars, you have debit rupees, and you have credit rupees. Now, heading is bank reconciliation statement of name of the business as on some particular date or for a particular month. That is what we will be writing as a heading. Now, bank reconciliation statement. So we are reconciling balance as per cash book with balance as per passbook. So we are going to start our statement, okay, with either balance as per cash book or balance as per passbook. Now, what can be balance as per cash book? Please, dhyan do, we have already seen this in cash book. There can be two types of balances. One is bank balance, yani we have our money with the bank, and other is bank overdraft. You remember bank overdraft? It means we have to give money to the bank. So bank balance always has a debit balance, and bank overdraft always has a credit balance. It means what? Bank balance means when your debit side is more than your credit side, it is a bank balance. It means your money is with the bank, your receipt is more than the payment. Bank overdraft means what? Bank overdraft means your payment is more than the receipt, so it is a credit balance because your credit side is more, you have paid more from your bank than you had. So bank is now giving you money. In bank balance, you are giving your money to the bank. In bank overdraft, bank is giving money to you. So this bank overdraft is your liability and bank balance is your asset for the business, liability for the business. Similarly, bank balance as per passbook will also be two things over here. Bank balance as per passbook, balance as per passbook will be either bank balance होगा या it will be bank overdraft. Now, bank balance as per cash book is debit. So bank balance as per passbook will be credit. यानी मेरा पैसा जो बैंक में है मेरे लिए असेट है तो बैंक के लिए लायबिलिटी है. बैंक ओवरड्राफ्ट मींस बैंक का पैसा मेरे पास है तो मेरे लिए लायबिलिटी है, क्रेडिट है, तो बैंक के लिए इट विल बी असेट, सो इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस. प्लीज मेक दिस इज इंपॉर्टेंट. It's very important because this is the beginning of the statement. All of you understood this? All of you understood this? Yes, sir. Now, Yes, sir. चारों नहीं हो सकते, ओके? चारों नहीं हो सकते कि सर मेरे बुक्स में बैंक बैलेंस भी है और बैंक ओवरड्राफ्ट है. दोनों नहीं हो सकता. या बैंक बैलेंस होगा या बैंक ओवरड्राफ्ट होगा. यानी बैंक बैलेंस मीन्स तुम्हारा पैसा बैंक में है या बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक का पैसा तुम्हारे पास है. So you have to pay money to the bank. In bank balance, bank will give you money. Your money is with the bank. Similarly, passbook में maybe bank balance होगा या फिर or it will be bank overdraft. और यानी OR, AUR नहीं, or. Is this clear? Either this or this wala or. Okay. Now, so when we are comparing balance as per cash book with balance as per passbook, you can start either with this or with this. Compare ही करना है तो या
कैश बुक के दोनों में से कोई भी एक से चालू कर सकते हैं, या फिर पासबुक के दोनों में से कोई भी एक से चालू कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू द स्टेटमेंट. So in the statement, okay, when we start the sum, it can be bank balance as per cash book. Now bank balance as per cash book, come to this format, bank balance cash book mein it is debit. So over here I will write debit. Or either we can start with bank balance as per cash book, or it will be given in the question, or it can be bank balance as per bank overdraft as per cash book. It will be credit. So either we can start with this or this, or comparison ही करना है तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, कैश बुक से पासबुक का कर सकते हैं या पासबुक से कैश बुक का कर सकते हैं. और it will be given in the sum, तुम्हें कैसे चालू करना है. Okay, so don't worry. Okay, or it can be bank balance as per passbook. Tell me what will be the bank balance as per passbook, debit होगा या credit? Credit. Credit. Very good. Or bank balance as per bank overdraft as per passbook. Tell me debit or credit? Bank overdraft as per passbook. यहाँ पे क्या लिखा है हमने? Debit. 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 Now, please confuse मत होना कि ये सर ने डेबिट क्रेडिट पासबुक कैशबुक बैंक बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट पता नहीं क्या हो गया. कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में दिया होगा. मैं तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शंस बता रहा हूँ. इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि तुम्हें किससे चालू करना है. ओके, इन चारों में से कोई भी एक से हम चालू हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे. नाउ we are going to record the reason for difference between balance as per cash book and balance as per passbook. Now what can be the reason for differences? Let's start one by one. Now let's start with the first reason. Now तुम्हारे पास चेक आया, प्लीज ध्यान देना सब. तुम्हारे पास चेक आया तो तुम इस चेक का क्या करोगे? चेक खेलोगे. लेकिन क्या करोगे इस चेक का? तुम डिपॉजिट. जैसे ही चेक मिला मुझे, फीस आया, आई विल गो एंड रन टू द बैंक एंड डिपॉजिट द चेक. अंडरस्टूड दिस? तो जैसे ही मैं चेक डिपॉजिट करने गया, डिपॉजिट किया, तो मैं मेरे कैश बुक में कौन सी साइड उस चेक को रिकॉर्ड करूंगा? Credit. चेक मिला जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो कैश बुक में पैसा आया, बैंक में पैसा जाएगा, आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में कौन सी साइड? चेक रिसीव्ड. कैश बुक में हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करते थे? Debit. डेबिट. वेरी गुड. तो चेक मिला तो यहाँ पे हमने उसका नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल अजय, और यहाँ पे हमने लिख दिया उसका जो अमाउंट था. बट क्या होता है, जैसे ही तुम चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हो, क्या तुम्हें तुरंत पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाता है कि टाइम लगता है? मैं पूछ रहा हूं तुम्हें, क्या ये पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुरंत आ जाएगा या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा. क्योंकि ये चेक जो मैंने डिपॉजिट किया
वो जाएगा फिर तुम्हारे बैंक में, वहां पे वेरीफाई होगा तुम्हारे पेरेंट का साइन, बैलेंस है कि नहीं है, डेट बराबर है कि नहीं, कुछ ओवर राइटिंग स्क्रिबल, कोई इसमें कुछ फ्रॉड वॉड जैसा तो नहीं है ना, वो सब चेक करने के बाद फिर पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा. सो देयर इज अ टाइम लैग. तो ऐसा हो सकता है कि महीने के अंत में तुमने चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, पर पासबुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं क्योंकि अभी तक बैंक में पैसा आया ही नहीं. अग्री विथ मी? अग्री विथ मी? तो इसकी Yes, वजह sir. से मिसमैच हो गया क्योंकि तुमने तो दिखा दिया बैंक बैलेंस बढ़ गया, पर बैंक ने बोला भाई रुपया अभी आया नहीं भाई. समझ में आया? मिसमैच हुआ. बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस था, तो तुमने तो कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक था. तुमने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया, तुमने तो कैश बुक में रिकॉर्ड करके बैलेंस बढ़ा दिया, पर पासबुक का बैलेंस उधर का उधर ही रहा. तो कहने से मिसमैच हो गया. तो अब हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट. राइट द फर्स्ट रीजन फॉर डिफरेंस, दैट इज checks deposited in the bank, not credited or collected, not credited or collected by bank. अब मुझे बताओ बीआरएस में हम इसको कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? ध्यान दो प्लीज. अब कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड हो गया था, पर पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे आई एम राइटिंग क्रेडिट. इज दिस क्लियर? तो ही मैच होगा ना. एक में जगह डेबिट हुआ और दूसरी जगह क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो फिर वो मैच हो जाएगा. समझ में आया ये? ओके, सो वी हैव टू डू व्हाट इज नॉट डन. इज दिस क्लियर? ओके. अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, पर वो लेटर ऑन हम देखते हैं. अभी तुम ये अंडरस्टैंडिंग पे जाओ. ओके, तो कैश बुक में डेबिट पर पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो वी विल डू व्हाट इज नॉट डन. तो हम क्रेडिट करेंगे कहां पे? पासबुक में नहीं, इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सेकेंड रीजन फॉर डिफरेंस, checks issued or drawn not recorded in passbook. अब क्या होता है चेक इश्यूड और ड्रॉन? मैंने क्या किया, मैंने लोगों को चेक्स इश्यू कर दिए, मैंने लोगों को चेक्स दे दिए. किसी को 500 का चेक दिया, किसी को 1000 का चेक दिया, किसी को 3000 का चेक दिया. तो जैसे ही मैं किसी को चेक देता हूं, तो क्या तुरंत मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है? तुम्हारे पेरेंट्स No. यहाँ पे आए और उन्होंने मुझे चेक दिया, तो क्या तुरंत उनको मैसेज आ गया कि पैसा गया? No. नो. उनको मुझे जाके वो चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा ना. यानी जिसको हमने चेक दिया है वो पहले जाएगा, डिपॉजिट करेगा, फिर उसकी बैंक में से हमारे बैंक में आएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही उसको पैसा मिलेगा. कहना इसे टाइमिंग डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस. सो अब मैंने तो मेरे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, पर पासबुक में अभी तक वो डेबिट हुआ नहीं है. नहीं. तो बीआरएस में हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? Debit side. Debit. Right. Very good, all of you. So BRS में we record it on the debit side. So ऐसे तुम्हें डेबिट लिखना है ताकि तुम जब लिखोगे तो तुम्हें ये याद रह जाएगा कि चेक issued or drawn not recorded in passbook. Now I am going to the third reason. Please ध्यान देना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन है. ओके, चेक्स, इसका आंसर तुम्हें मुझे देना है सोच के. चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक.
checks deposited in the bank not recorded in cash book, यानी हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, पर अभी तक हम हमारे कैश बुक में ही उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कौन सी साइड आएगा? यानी पासबुक में आ गया पर कैश बुक में नहीं आया, डेबिट साइड। वेरी गुड, ध्यान दो। अब मेरे पास चेक आया, मैं तुरंत ही भागा व्हीकल लेके बैंक गया, डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में जब मैंने डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में तो ये क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड आ गया, पर कैश बुक में मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। कौन सी साइड रिकॉर्ड करना भूल गया? रिसीप्ट साइड, डेबिट साइड। तो recorded in passbook but not recorded in cash book. So now we have to do what is not done in our bank reconciliation statement. So it will come on the debit side. All of you understood this? Can I Sir, say? can you please explain it again? Sorry. Sir, can you please explain it again? Yes. Can I say over here that यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो वो मेरा गलती है, मेरा एरर है कि मेरे पास चेक आया मेरे स्टूडेंट की फीस का, मैं बैंक में गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में पैसा भी आ गया, सो बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ गया, पर मेरे कैश बुक में मैंने उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो अब कैश बुक में जब चेक मिलता है तो कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है? ऑन द डेबिट साइड, पर हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया। उसकी वजह से क्या हो गया? बैंक बैलेंस बढ़ गया पासबुक में, पर कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेम लेवल लाने के लिए। समझ में आया तिथि? Yes, sir. So we have to now record it on the debit side. Is this clear now, all of you? Now, fourth, checks issued or drawn presented for payment not recorded in cash book. यानी क्या? You understand the language please, because ये इंग्लिश में दिया है। ओके, ध्यान दो प्लीज, बराबर समझना। ओके, बिकॉज लैंग्वेज समझोगे तो कंसेप्ट भी समझ में आएगा। चेक इश्यू किया, ड्रॉ किया और वो प्रेजेंट हो गया पेमेंट के लिए, यानी मैंने किसी को चेक दिया, तुम्हारे पेरेंट ने मुझे चेक दिया, तो मैं तुरंत गया बैंक में और मैंने ये जो चेक था वो डिपॉजिट कर दिया। तो तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा निकल के मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, पर तुमने तुम्हारे कैश बुक में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यानी पासबुक में से, बैंक में से पैसा निकल गया, डेबिट साइड आ गया, डिडक्ट हो गया मेरा बैलेंस, पर कैश बुक में हम रिकॉर्ड करना भूल गए। कौन सी साइड चेक इश्यू किया? तो पेमेंट साइड, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो कौन सी साइड लिखेंगे बीआरएस में? Credit side. Credit side. Side. All of you understood this? All of you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, see, next one. Fifth one. Now, this is very interesting. Okay, and now with online payment thing, this also happens so many times with us. Direct deposits by customers not recorded in cash book. Now, what is this direct deposit by customers? यानी अब मेरे स्टूडेंट्स है अक्रॉस बड़ौदा है, तो उन्होंने क्या किया? ऑनलाइन मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक की कोई ब्रांच पे गए
और वहां पे जाके फीस डिपॉजिट कर दिया मेरे अकाउंट में। इनफैक्ट आजकल कुछ स्कूल पे फीस नहीं लेती है, स्कूल पे फीस नहीं लेती है, यानी फीस तो लेती है पर स्कूल पे नहीं। वो कहती है तुम्हें कि जाओ हमारे बैंक अकाउंट में बैंक के ब्रांच पे जाके डिपॉजिट कर दो। तो डायरेक्टली अगर मेरा कोई कस्टमर है वो मेरे बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर देता है, तो मुझे ये बताओ ये पहले ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैशबुक में होगा या पासबुक में होगा? पासबुक। वेरी गुड, पासबुक में होगा। सबसे पहले ये बैंक के अंदर ही पैसा मेरे अकाउंट में चला गया, तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड होगा इन पासबुक। सो पासबुक में कौन सी साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। पासबुक में रिवर्स है, क्रेडिट इज रिसीव क्रेडिट। एंड पेमेंट इज डेबिट। तो क्रेडिट साइड आएगा पासबुक में। पासबुक में बैंक विल क्रेडिट, सो बैंक विल कलेक्ट, आवर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज इन द बैंक। बट कैश बुक में हमने कौन सी साइड इसको रिकॉर्ड नहीं किया? डेबिट। डेबिट साइड। पर कैश बुक में डेबिट हुआ नहीं। तो बीआरएस में कौन सी साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। Understood this? This is important. 1, 2, 3, 4 extremely important reason for difference. अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे हर जगह मिसमैच है. That is why we are preparing this bank reconciliation statement. Now, इसके अलावा क्या होता है कि अगर बैंक को कुछ हमसे पैसा लेना है, जैसे कि बैंक चार्जेस है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, ओके, तो बैंक क्या हमारे पास आके हमको ऐसा बोलेगा कि भाई इतना पैसा दो? बैंक क्या करेगा, डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा निकाल देगा। सो राइट द 6 रीजन फॉर डिफरेंस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, कमीशन etc. debited by bank, not recorded in cash book. Now, as you can see over here, bank charges, interest, commission debited by bank. यानी पहले ये ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में या पासबुक में? लेकिन संभला तो नहीं माने, ये ट्रांजैक्शन शुभंकर कहाँ रिकॉर्ड होगा पहले? पासबुक। वेरी गुड, पासबुक में, बिकॉज बैंक ने डेबिट किया तो बैंक ने हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पैसा निकाल लिया, तो बैंक में ट्रांजैक्शन हो गया, हमारे पासबुक में आ गया। और हमको कब पता चला, जब हमें मैसेज आया, जब हमें ईमेल आया, जब हमें बैंक एडवाइस मिला, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे इन अवर कैश बुक। अग्री? तो बैंक ने डेबिट किया तो हम क्या करेंगे उसको? क्रेडिट। Credit. Very good. So bank has debited, so we should credit. This is very simple. Okay, bank has debited, so we have to credit. It will come on the payment side of cash book. Okay, then 7, बैंक जैसे चार्जेस डिडक्ट करता है, इंटरेस्ट डिडक्ट करता है, कमीशन डिडक्ट करता है, वैसे पैसा कितनी बार डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है, जैसे कि डिविडेंड। आजकल डिविडेंड के चेक बहुत रेयरली आते हैं। कंपनीज जो है वो डायरेक्ट हमारे डीमैट अकाउंट से, जो बैंक अकाउंट कनेक्टेड है, उसमें डायरेक्ट ही डिविडेंड दे देता है। सो डिविडेंड है। बैंक को अगर इंटरेस्ट देना है तो बैंक भी हमारे अकाउंट में डायरेक्ट इंटरेस्ट दे देगा। तो डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, क्रेडिटेड बाय बैंक। You please be watchful and earful about what we are writing. Dividend, interest, credited by bank, credited by bank, credited by bank, credited by bank. यानी बैंक में पहले ये ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक ने क्रेडिट किया हमारे अकाउंट में, और हमने अभी तक रिकॉर्ड किया नहीं इन अवर
cash book. So far we have not recorded in our cash book. So bank has credited, but we have not yet. Bank has credited, but we have not yet. तुम्हें आंसर देना है. Debited. Debited. We have not yet debited. अभी ये Debit. तुम तो एक्चुअल नहीं है मेरे सामने. ओके तो मैं जब रुका तो आई वांटेड यू टू गिव अ रिप्लाई. ओके बैंक हैज क्रेडिटेड तो वी हैव टू Debit. Debited. जब ऐसी शक्ल तुम देखो तो समझ जाओ कि सर पूछ रहे. ओके वी हैव डेबिटेड. सो वी हैव टू डेबिट. तो अब हम बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे ऑन द डेबिट साइड. Is this clear all of you? कंसेप्ट पता चल गया ना? ये सब है ना रीजन फॉर डिफरेंस है. यानी जरूरी नहीं है कि हर एक सम में सारे रीजन आएंगे. ओके कुछ रीजन आएंगे, कुछ रीजन नहीं भी आएंगे. वी हैव टू सी सम टू सम. नाउ आई एम गिविंग यू के पॉसिबल रीजंस. हो सकता है इसके अलावा भी कुछ हो जो हम सम्स करेंगे तब हम देखेंगे. ए नाउ बैंक क्या करता है कितनी बार? Have you heard of ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम? यानी आज अगर तुम कुछ लोन पे लेते हो तो तुम्हें इतने उतने चेक नहीं देने पड़ते. हर महीने बैंक में से ऑटोमेटिक पैसा चला जाता है. तो बैंक डायरेक्टली हमारे अकाउंट से किसी को पे कर देता है. तो ECS है, EMI है, इंश्योरेंस पेमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, यूटिलिटी बिल्स है. यूटिलिटी बिल्स यानी क्या? इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्युनिसिपल बिल, गैस बिल, मोबाइल BSNL बिल. तो यूटिलिटी मोबाइल बिल और लैंडलाइन बिल आर यूटिलिटी बिल्स. ओके सो यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, यूटिलिटी बिल्स यानी क्या? यू कैन राइट इन ब्रैकेट इलेक्ट्रिसिटी, telephone, etc. Insurance premium, utility bills directly paid by bank, not recorded in cash book. Directly paid by bank, not recorded in cash book. Tell me which side it will come. ये सब खर्चे हम कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? Credit. Credit. क्रेडिट साइड. बैंक जब ये सब पे करेगा तो बैंक हमारा अकाउंट डेबिट करेगा. बैंक देखो यहाँ पे बैंक लिखा है मैंने, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा. और कैश बुक में हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है जो रह गया है. तो अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. 9 checks recorded in cash book. ध्यान दो, चेक रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में बट नॉट गिवन टू ट्रेडर्स. अब मुझे बताओ ये कौन सी साइड आएगा? चेक किसी को देना था तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, चेक लिख भी दिया, साइन कर भी दिया, पर अभी तक सामने वाले को दिया नहीं है. तो कहां पे ये आएगा और कहां पे ये नहीं आएगा? Yes, Jaidat, you want to say something? સર ડેબિટમાં આવશે કદાચ. Credit side, sir. Debit side. ડેબિટ સર. Chanchal Trivedi. What's the answer? Chanchal. यानी ये कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो चुका है, और अगर हमने सामने वाले को चेक दिया ही नहीं है तो हमारे बैंक से ये डेबिट होने वाला ही नहीं है. तो कैश बुक में क्रेडिट हो गया पर पासबुक में डेबिट हुआ नहीं. तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे हम?
डेबिट Debit side. Debit side. Very good. Okay, so be careful. Okay, read the transaction properly. Now, 10 important dishonor of bill of exchange debited by bank with noting noting charges not recorded in cash book. नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर है, ओके, जहां पे मुझे पता है कि ये पेपर मैं 2 महीने बाद किसी के पास लेके जाऊंगा तो वो मुझे पैसा दे देगा, पर मुझे पैसों की अभी जरूरत है तो मैं ये बिल लेके बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को बिल देता हूँ कि ये बिल रख लो, 2 महीने बाद तुम्हें पैसा मिलेगा, पर मुझे अभी थोड़ा पैसा दे दो भाई। तो बैंक क्या करेगा? ये बिल ले लेगा और हमें पैसा दे देगा। यानी अब हमारे पास तो पैसा आ गया, पर बैंक के पास तो सिर्फ ये कागज है। तो बैंक जब मैच्योर होगा बिल, तो जिसने इस पे साइन किया था उसके पास जाएगा और बोलेगा चलो पैसा दो, तुमने साइन किया है यहाँ पे, पर सामने वाले ने क्या किया? इस बिल को कर दिया डिसऑनर, बोला बैंक को पैसा नहीं, पैसे है नहीं। तो बैंक क्या करेगा? बैंक बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो बैंक हमारे अकाउंट से वो पैसा हमसे वापस ले लेगा। पर ये पैसा तो वापस लेगा, पर इस बिल डिसऑनर हुआ तो उसको वकील के पास जाके नोट कराना पड़ता है, तो बैंक हमसे उसका भी चार्ज लेगा, क्योंकि बैंक ने हमें पैसा दिया था, बैंक को हमने बिल दिया था, वो हमारा गलती है कि वो नहीं ऑनर हुआ, तो बैंक हमसे बिल का अमाउंट तो ले लेगा जो उसने हमको दिया था, पर चार्जेस भी हमसे कलेक्ट करेगा। नाउ डिसऑनर ऑफ बिल हुआ, बैंक ने हमसे पैसा लिया, तो बैंक करेगा उसको डेबिट, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट। करना पड़ेगा इसको क्रेडिट। अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ यू? नाउ 11, अब ध्यान दो, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने रिसीव साइड, पेमेंट साइड, रिसीव साइड, पेमेंट साइड सब कुछ बराबर रिकॉर्ड किया, पर फिर भी बैलेंस मैच नहीं हुआ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कैन एनीवन टेल मी? कि डेबिट साइड कैश बुक का क्रेडिट साइड पासबुक से मैच हो गया, क्रेडिट साइड कैश बुक का डेबिट साइड पासबुक से मैच हो गया, फिर भी बैलेंस मैच नहीं हुआ। ऐसा कब हो सकता है? सर कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गया हो तो? नहीं, पर हमने मैच कर दिया ना, मिस हुआ तो मैच कर देंगे ना, इधर मिस हो गया तो इधर तो है, तो हमने मैच कर दिया सब, तो कुछ मिस नहीं हुआ। अच्छा, तुम जब कैश बुक बनाते थे तब तुमने सब कुछ बराबर लिखा, ओके, रिसीव साइड, पेमेंट साइड, पर फिर भी तुम्हारा आंसर रॉन्ग आया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने क्या गलती किया कि तुम्हारा आंसर रॉन्ग आया? हाँ बोलो शुभंकर, उंगलियां मत दिखाओ। आंसर देना है तो बोलो, ऐसे ऐसे डोंट प्ले विथ फिंगर्स। तुम खुद मुझे बताओ, तुमने कैश बुक बनाया मिस्टेक, क्या? टोटलिंग मिस्टेक हो सकती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, टोटलिंग मिस्टेक कर दिया, सब कुछ सही किया, पर टोटलिंग कैलकुलेटर है फिर भी गलती की। ऐसी मिस्टेक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो अब उसकी वजह से भी मिसमैच आ गया कि सब कुछ बराबर था भाई, हमने कैश बुक में क्या किया, रिसीव साइड टोटल ज्यादा लिख दिया, या पेमेंट साइड ज्यादा कर दिया, या रिसीव साइड कम लिख दिया, पेमेंट साइड कम लिख दिया, तो उसकी वजह से भी देयर कैन बी मिसमैच। सो राइट द नेक्स्ट रीजन, रिसीव साइड। अब ये गलती कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। रिसीव साइड of cash book
overcast. Now I'll write in capital. Overcast यानी क्या? Overcast यानी रिसीप्ट साइड जो है हमारा, ये रिसीप्ट साइड, उसका टोटल ज्यादा हो गया. If it is more, we call it overcast. तो रिसीप्ट साइड कौन सा साइड है? रिसीप्ट साइड डेबिट साइड है. तो डेबिट साइड ज्यादा हो गया, तो उसको कम करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड को भी करना Credit side, so very good. So receipt side is debit side of cash book is overcast. So we write now to rectify or to reconcile it, we write it on the credit side of bank reconciliation statement. फिर receipt side of cash book can also be undercast. जैसे overcast है, वैसे it can also be undercast. तो undercast है, it means what? Receipt side of cash book, receipt side of cash book is debit side. Debit side कम है, तो हमें अब फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से क्या करना पड़ेगा? अनम्यूट करके आंसर दो. डेबिट करना पड़ेगा. डेबिट करना पड़ेगा. वेरी गुड. रिसीप्ट साइड ध्यान दो. अंडरकास्ट ओवरकास्ट आगे रेक्टिफिकेशन में भी आएगा. ओवरकास्ट यानी वधारे, ओवरकास्ट यानी मोर, ओवरकास्ट यानी ज्यादा, अंडरकास्ट मींस लेस, अंडरकास्ट यानी कम, अंडरकास्ट मींस द टोटलिंग इज लेस. सो डेबिट लेस हुआ, तो अब हमें उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. डेबिट को ही इंक्रीज करना पड़ेगा. बट जहां ओवरकास्ट हो गया, डेबिट इतना था अपन इतना कर दिया, तो उसको फिर कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा. जो प्लस था उसको करना पड़ेगा माइनस. नाउ 13 पेमेंट साइड. यू हैव टू टेल मी दीज टू. पेमेंट साइड आई विल राइट इन ब्रैकेट क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक overcast. Tell me what side? डेबिट. Debit side. Very good, debit side. And 14. Payment side. Undercast. Tell me which side? Debit or credit? क्रेडिट. Credit. वेरी गुड. नाउ सब कर दिया, सारे रीजंस हमने लिख दिए. उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हमें टोटल करना पड़ेगा और बैलेंस करना पड़ेगा. अब जो हमारा बैलेंस आएगा लास्ट में, ओके, इट कैन बी व्हाट? अगर तुमने कैश बुक से चालू किया तो नीचे आएगा एज पर पासबुक. अगर तुमने पासबुक से चालू किया तो नीचे आएगा एज पर कैश बुक. तो ये चारों के चारों ऑप्शन मैं नीचे लिख देता हूं, क्योंकि इस हिसाब से ही तुम्हारा फिर बैलेंस आएगा. सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. सो फाइनली व्हेन यू डू द टोटल, जो डिफरेंस है, अगर डेबिट है तो ऊपर देखना है कैसे चालू किया. अगर कैश बुक से चालू किया है तो डेबिट यहाँ पे हो जाएगा एज पर पासबुक. अगर पासबुक से चालू किया है तो इट विल बी एज पर कैश बुक. तो ये चारों में से कोई भी एक आएगा हमारा बैलेंस. बट ऊपर कैश बुक से चालू किया तो नीचे पासबुक आएगा, ऊपर पासबुक से चालू किया तो नीचे कैश बुक से आएगा. और वैसे हमारा ये टोटल करके जो बैलेंस मिला, उससे हमें पता चलेगा कि ये रिकंसाइल हुआ कि नहीं. Is this clear? All of you understood this? Tomorrow we will be doing a practical sum. Now what you have to do today is you have to write this complete format 3 times. Not just write. Whenever you are writing, you make this type of scribbling, CBPB, write all these things, and with every transaction try to understand the concept, understand the statement. Okay, so that you don't make a mistake. एक बार ये कंसेप्ट फिट हो गया कि जो कैश बुक में डेबिट, पासबुक में नहीं है, तो हमें लिखना है क्रेडिट साइड. पासबुक में क्रेडिट, कैश बुक में नहीं है, तो हमें लिखना है ऑन द डेबिट साइड. देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन DRS. सो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मेट 3 टाइम्स. अभी जो लिखा उसको मैं नहीं गिनूंगा. ओके, तो ऑनेस्टली लिखना 3 टाइम्स.
is I think कि इससे mostly on an average you will be able to catch hold of the concept and the statement. But if you feel that you are not still able to understand, then write it once again. Also watch my video lecture so that you can understand the concept again. ऐसा हो तो first time when you write, you watch my video lecture and write along with it. So that फिर से एक बार मैं जो बोल रहा हूँ वो सब तुम्हें सुनाई देगा तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. In this chapter, this is only what we have to do. It can come for minimum 6 marks in your exam. Okay? If you have any doubts, you can ask.